میں بہت سیوں کو جانتی ہیں، ہماری اپنی فیملی میں بھی ہیں کہ ایک تو وہ جابز نہیں ہوتی ان کے پاس، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی نیڈز ہوتی ہیں، سب کا گھر کا بھی سنبھالنا ہے، باہر کا بھی سنبھالنا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی اسٹریس سے ان کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. کورٹس، پھر اس کے ساتھ ساتھ جانا پولیس اسٹیشنز کے اندر، اور پھر ہر جگہ جا کے پوچھنا کسی سے کہ کہیں ان کو دیکھا تھا لاسٹ. تو یہ اتنا پینفل جرنی ہوتی ہے، اور اس کے دوران وقت بھی گزرتا رہتا ہے. اور اس میں جو ہاف وڈوز ہوتی ہیں جن کے بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، تو ان کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر سڈنلی سارا جو سوشل اکنامک برڈن ہے وہ سارا ان کے اوپر فال اپون کر جاتا ہے ان کے شولڈرز پہ. اینڈ موسٹ آف دیم، یہ ولیجز میں جو کرائمز کیے جاتے ہیں انڈیا کی طرف سے، وار کرائمز، دے آر ناٹ کوالیفائڈ انف. وہ اسکلڈ لیبر میں نہیں آتی ہیں. ان کی وائفز جو ہوتی ہیں مسنگ پرسنس کی، یا مدرز جو ہوتی ہیں، تو بچے یا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ پھر انسکلڈ لیبر کی آپ کو پتہ ہے ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے. پھر ایسے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جہاں ہر جگہ آرمی کیمپس ہیں اور دے سرچ آپریشنز، اور عورتیں جو اکیلی ہوں اس طرح، ان کو اور بھی زیادہ یہ سیکشولی مس یوز کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، ان کو گلیئر کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو ابیوز کرتے ہیں. تو پھر جاب سیکنگ کرنا، تو اتنا یہ پینفل ہے یہ جرنی. آئی مین ایک مومنٹ کے لیے بھی اگر کوئی احساس اس بات کا کرے، مگر یہ تو سالہ سال جیسے کہ انویزیبل ہو گئے ہیں ان کے پیارے، اور ان کی سرچ کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو برڈنز آئے ہیں، اور جو اتنا اوور برڈن ہو جاتی ہیں. میں بہت سیوں کو جانتی ہیں، ہماری اپنی فیملی میں بھی ہیں کہ ایک تو وہ جابز نہیں ہوتی ان کے پاس، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی نیڈز ہوتی ہیں، سب کا گھر کا بھی سنبھالنا ہے، باہر کا بھی سنبھالنا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی اسٹریس سے ان کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اور پھر ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پوری فیملی کا لیے ایک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. اتنی کمپلیکیشنز بڑھتی جاتی ہیں، تو اٹس اسپائرل. دی اونلی ڈفرینس از کہ اس وقت کے جو وار کرائمز ہو رہے تھے اور جو پوسٹ 5 اگست کے ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ فرق ہے کہ اس وقت انڈین آکوپیشن تھی، اس کی گروتھ ہو رہی تھی. I mean, there were only 2 vegetations that were growing in Indian occupied Jammu and Kashmir. One was the Indian Army brute, and the second was the graveyards were بڑھتے جا رہے تھے لاشیں ہمارے loved ones کی. مگر اس دوران میں نئے سے نئے کرائمز ایجاد ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے. حال ہی میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جو گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، سعید علی گیلانی صاحب ایک سینئر موسٹ لیڈر، اور وہ ان کو کنفائنمنٹ میں تھے فار اوور اے ڈیکیڈ، ہاؤس اریسٹ میں. ان کی ڈیتھ بھی کنفائنمنٹ میں ہوئی، پھر ان کو بیری بھی کنفائنمنٹ میں کیا گیا، اور ان کی فیملی ممبرس کو جس طرح مارا پیٹا گیا. تو یہ تو ایک نیا کرائم ہے نا، کہ ایک کنفائنمنٹ میں ہی بیری کر دینا. اور اس سے پہلے مقبول بٹ شہید، افضل گروپ کی اگر آپ دیکھ لیں کہ جستے خاکی آج تک نہیں ملی، تہاڑ جیل میں ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو یہ ایک نئے کرائمز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن شیلڈز کے طور پہ کشمیریوں کو یوز کیا گیا ہے، ایک آدھ فوٹیج آپ وائرل ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی ون. یہ ان کا پرانا ٹریڈیشن ہوتا جا رہا ہے. کبھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی آگے لگا دیا، کبھی نیچے گھسیٹ کے اس کو اسکوٹر کے ساتھ، کبھی اپنی آرمی ٹرکس کے ساتھ لگا دیا. اور ابھی ریسنٹ ایک اور ویژول آیا ہے جس کے اندر ایک عورت کو کرش کر دیا ہے ان اے ولیج ان کشمیر، اپنے آرمی کا جو ان کا ٹرک تھا. تو اس میں جو اس کی ہاف کرشڈ باڈی ہے، جسٹ آئی کانٹ ایون لائک واچ دیٹ ویڈیو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیلٹس کو اگر ہم دیکھ لیں جس طریقے سے یوز کیے جاتے ہیں. بٹ جتنے بھی وار کرائمز یہاں ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، کیونکہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو جو ڈیفینس کا ٹریڈ ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر، اس میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ سولینس کے اوپر یوز کیے جائیں گے ویپن، جس طرح کہ انڈیا یوز کرتا ہے کشمیریوں کے اوپر. پیپر گیس، ٹیئر گیس، پھر اس کے بعد فاسفورس شیلز، کیمیکل ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، پیلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، شوٹر گنز یوز کی جا رہی ہیں. تو دیز آر آل بینڈ، اور پیلٹس آر ایون بینڈ آن اینیملز، تو وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ڈیفینس سینکشنز انڈیا پہ لگ سکتی ہیں. مگر
क्या क्या क्राइम्स आपको बताएं कि रेप विक्टिम्स जो वहाँ की हैं, वहाँ पे इतने इंसिडेंट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ औरतों पे नहीं हो रही, आदमियों पे भी हो रही है, बच्चों पे हो रही है, जिसके बारे में बहुत सी खबरें बाहर नहीं निकलती हैं। रिलीजियस राइट्स नहीं, 500 मॉस्क्स इन्होंने डीमार्क की हैं इंडिया ने, जिनको वो शहीद करके वहाँ पे मंदिर तामीर करेंगे। जब से आर्टिकल 370 35A को हटाया गया है, एब्रोगेट किया गया है, उससे जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं, क्योंकि पहले तो इंडियन आर्मी वायलेट कर रही थी, हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन रही थी, अब उनकी पब्लिक को भी वही लाइसेंस दे दिया गया है कि वो आएँ और प्लंडर करें और कब्जा करें। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट लैंड ग्रैबर ऑफ द सेंचुरी, आई वुड से, जो इंडिया इस वक्त कर रहा है, कम्प्लीटली कर रहा है। ऑक्यूपायर के तौर पर आया, अब अपनी पब्लिक को भी एज एन ऑक्यूपायर वहाँ पे सेटल कर रहा है। और ये जिस तरह जूइश सेटलमेंट्स हो रही हैं वेस्ट बैंक पे इज़राइल की, उसी को रेप्लिकेट भी कर रहा है। और उसके साथ साथ जो इन्होंने पास्ट में खुद भी, मोदी ने आरएसएस का क्योंकि फॉलोअर है, आरएसएस ने 1947 के अंदर जिस तरह डेमोग्राफी जम्मू की कॉस्मेटिकली चेंज की, और वहाँ पे अब वो रीजन है टेम्पल्स का, और वहाँ पे कश्मीरी या जम्मूआइट्स नहीं रहते, बसते नहीं हैं। 5 लाख मुसलमानों को स्लॉटर किया, जम्मू के मुसलमानों को। उनके कुछ जो रेमनेंट्स या रिमेनिंग जो फैमिलीज थी, वो कुछ पाकिस्तान आ गई, कुछ बाहर भाग गई जान बचाने के लिए। मगर अब वहाँ पे सारे इंडियंस रहते हैं, मेजॉरिटी जो है इंडियन रहते हैं, जिनको उन्होंने जम्मू की स्टेटहुड दे दी। वही प्लान अब ये श्रीनगर, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर दो यूनियन टेरिटरीज जो इन्होंने बना दी हैं, अब ये 3 पे आना चाह रहे हैं। लद्दाख को भी एज 3 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड करके वहाँ पे अपना एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। वहाँ पे अपने पपेट्स को ही बिठा के उनके थ्रू ये अंडर द माइट ऑफ द गन इलेक्शंस कराते हैं, जिसके अंदर हार्डली कोई 1 to 3% वोटर टर्नआउट होता है। और वो भी इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी फैमिलीज को ले आते हैं या फॉर्जरी करके वोट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमने सो कॉल्ड इलेक्शंस कर दिए। तो उन इलेक्शंस के थ्रू भी जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो इतना सफ़र करती है, क्योंकि इन पपेट इलेक्शंस के थ्रू सारे काले कवानीन पास किए जाते हैं। टाडा, पोटा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, टेलीग्राम एक्ट, ये सारे ड्रैकोनियन लॉज हैं जिसके तहत इंडियन आर्मी को इम्यूनिटी दी जाती है इन वॉर क्राइम्स जो वो कमिट करता है, जो जेनोसाइड, जो एथनिक क्लेंजिंग वो कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये सारा का सारा जो सिस्टमैटिकली जो कुछ हो रहा है, जो कश्मीरियों को एलिमिनेट करने की तैयारी हो रही है, तो उसमें कौन कौन सा इनका बताया जाए। यूथ के साथ अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स उनके लिए बनाए हुए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जिसके अंदर बहुत से जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको वहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। और वहाँ पे उनको फिर बहुत सी स्टोरीज़ बाहर भी निकली हैं, जिसके अंदर ये भी बताया है कि वहाँ पे यूथ को बर्न किया जाता है, उनकी बॉडीज़ को पील किया जाता है, ज़िंदा लोगों को इस तरह का इलेक्ट्रिक्यूट किया जाता है, उनके जेनिटल, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको जिस तरीके से इलेक्ट्रिक्यूट किया जाता है, फिर डेड बॉडीज़ के साथ म्यूटिलेशन की जाती है। तो ये इससे बढ़ के और क्या क्राइम्स होंगे लोगों के साथ। ना दफनाने का हक है, ना ज़िंदा रहने का हक है। जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं हमारी, जो हुर्रियत के रहनुमा हैं, उनको जेलों में बंद किया हुआ है, उनको एलिमिनेट करने की तैयारी है। पूरी हमारी तहरीक को लीडरलेस करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे सईद अली गिलानी साहब को जिस तरीके से दफनाया गया, उनकी जो लास्ट विल थी, उनको शहीदों के कब्रिस्तान के अंदर वो उनको दफनाना था, वहाँ नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मारा पीटा गया, घर में लॉक कर दिया, वो आखिरी रसूमात उनको वसूल भी ना दे सके। और उसके साथ साथ अशरफ सहराई साहब जो उनके सक्सेसर थे, उनको भी जेल के अंदर जहर दे दिया गया कुछ अर्सा पहले, और वो भी शहीद हो गए, उनको इलाज नहीं कराया गया। आसिया अंद्राबी तिहाड़ जेल के अंदर एस्थमेटिक हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनके हस्बैंड डॉक्टर पख्तू भी जेल के अंदर हैं। शबीर शाह साहब तिहाड़ जेल के अंदर है। मुसरत आलम साहब भी तिहाड़ जेल के अंदर है। यासीन साहब को तिहाड़ की डेथ सेल में रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड को, उनको भी मारा पीटा गया है फिज़िकली ओवर द 2 years। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, फैमिली से बिल्कुल राब्ते की कोई इजाज़त नहीं है। हालांकि अगर जितने भी हमारे प्रिजनर्स को आप देख लें, सारे के सारे, चाहे वो आम पब्लिक हो, सेकेंड टियर लीडरशिप हो, टॉप टियर लीडरशिप हो, सारे के सारे जो हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है। और इंडिया सिग्नेटरी है
on the rights of Geneva Conventions on the rights of prisoners. तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे, कोई लॉयर लीगल एक्सेस भी नहीं है, ख़ासतौर पे यासीन साहब के मैटर के अंदर उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। हमारी फैमिली की 2 साल से ऊपर राब्ता नहीं हो रहा उनके साथ। मतलब दुनिया को कोई कानून जो है वो रोक नहीं सकता, मगर कश्मीरियों के लिए दुनिया का कोई कानून जो है वो लागू ही नहीं है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से वो हमें इंसान ही नहीं समझते कि हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल या कोई बेसिक फंडामेंटल जो कानून है, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीरी तो जो है इनको तो सिर्फ एलिमिनेट करना है। इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कश्मीरी एक ज़िंदा जो एक कश्मीरी है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और उसके बाद अगर किसी का फौत होने के बाद कोई मज़ार बन जाए, कोई शहीद हो जाए, वो भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो इसीलिए अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर वो लोग लैंड होते हैं। मगर यूनाइटेड नेशंस का इस वक्त जो बहुत ज़रूरी है कि एक तो टेबल की जाए रेजोल्यूशंस, उसके साथ साथ वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाएं, इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस लगाई जाए इंडिया के ऊपर, और उसके साथ साथ एक कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट किया जाए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जो पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का जो केस है आवाज़ उठाए, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको रिलीज़ कराने के लिए आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि द सोल्यूशन डज नॉट लाई विद द UN, with India, Pakistan or anybody else. The solution lies with the Kashmiri leadership and the public. वो सीट्स अब अलॉट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अब बहुत बड़ा चंक जो है इंडियंस को वहाँ की रेजिडेंसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं और वोटर राइट्स दे दिए हैं, तो उनको अब वो वहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज कैंडिडेट्स। तो उसकी वजह से उन्होंने डीलिमिटेशन के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है कश्मीर का, इसको तब्दील करके कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी वहाँ पे सीट्स अलॉट की जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियंस को दी जाएंगी, नॉट कश्मीरीज़ को। और उन्होंने जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील इस मैटर को किया है, उसके अंदर अगर हम लोग 2011 का सेंसस उठा के देख लें, पॉपुलेशन सेंसस, तो उसके अंदर कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन, अगर हम रिलीजन को भी निकाल दें, सिर्फ हम पॉपुलेशन देख लें, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंसेंसस, कि 6.8 जो है मिलियन वहाँ पे कश्मीरीज बसते हैं, और जम्मू के अंदर जो है 5.3 मिलियन बसते हैं। मगर इस पॉपुलेशन की बेसिस पे जो सीट्स दी जाती थी अब वो नहीं होंगी, तो अब वो ज्योग्राफी की बेसिस पे कर रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो भी उनके कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए 24 सीट्स वेकेंट सीट्स होंगी इनके इस पार्लियामेंट के अंदर, जो वो रिज़र्व कर दी हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सीट्स ये अब 7 और ऐड कर रहे हैं जम्मू के लिए। तो अगर आप ये इसको अगर आप टेक्निकली देखें कि जिस तरीके से वहाँ पे सारा जो मैटर है उसको चेंज किया जा रहा है, और वहाँ पे डी मैपिंग की जा रही है, डी मार्केटिंग की जा रही है,